Hello students, good morning everybody. Today I am going to discuss exercise 3.6. I have already discussed exercise 3.5. Lot of problems we have discussed. So here in this 17 video of trigonometry, we will discuss first few formula of this exercise. Like as first is a product formula. This is a very important formula of trigonometry, revised properly. Now, in a product formula, the product formula is only between sine and cos. So here, first formula is 2 sine A into sine B. These two terms are given in product. So here, what is the formula of 2 sine A into cos B? It is equals to sine A plus B plus sine A minus B. Clear? And similarly, if 2 cos A sine B, it is equals to sine A plus B minus sine A minus B. Similarly, if both terms are cos, like as a 2 cos A cos B is equals to cos A plus B plus cos A minus B. If both terms are sine, like as a 2 sine A sine B, it is equals to cos A minus B minus cos A plus B. Clear? These are the 4 product formula of trigonometry. ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जैसा बताया कि पहले 2 फार्मूले साइन कॉस और कॉस साइन के बीच है, और दूसरे 2 फार्मूले ये आपका प्योर कॉस में है और ये प्योर दोनों साइन में है. तो इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, इनका बहुत यूज होगा. जब कभी भी हमें ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हों तो आगे सॉल्व करने में ये फार्मूले काफी हेल्प करते हैं. सिमिलरली वी विल डिस्कस here also C plus D formula. You can say that addition is subtraction formula in trigonometry. Generally it is called C plus D formula. Like as here, if 2 trigonometrical term, it is also between sine and cos. It is also between only sine and only cos. Okay, like as here sine C plus sine D. Sin C plus sin D is equals to 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Similarly, sin C minus sin D, if in the first formula it is plus, here it is minus. So sin C minus sin D, 2 cos C plus D by 2 into sin C minus D by 2, correct? And here, if both terms are cos C plus cos D is equals to 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. Similarly, if both terms cos, but here in between minus is there, so cos C minus cos D is equals to 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2. Listen one thing, it is totally different from other formula. In a previous formula, C plus D, C minus D by 2, C minus D by 2, C minus D by 2, but here D minus C by 2. Okay, if you want to write like as C minus D, you can use this formula also. Means cos C minus cos D के आप 2 फार्मूले समझ सकते हैं. एक तो ऊपर वाला रहा, अगर आप इसको C minus D लेना चाहेंगे तो माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा. तो यू कैन राइट आल्सो लाइक एज अ minus 2 sin C plus D by 2 into sin D minus C by 2. These two are very important formula. First one is a product formula. Second one is of C plus D means addition या subtraction formula. Clear? तो ये 2 फार्मूले हैं, 4 फार्मूले ऊपर 4 नीचे. इन्हीं हम फार्मूलों की हेल्प से जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज एमएल अग्रवाल की है 3.6, हम इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे और आगे समझेंगे कि इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं बाकी क्वेश्चंस को. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपके सामने एक्सरसाइज 3.6 एक्सरसाइज आपके सामने है और हम डिस्कस करेंगे इसकी कुछ प्रॉब्लम्स को. तो यहाँ पर पहला हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट आपकी एक्सरसाइज का है. पहले और दूसरे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.6 के हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस हैं. अगर उन फार्मूलों को जो मैंने अभी बताया है वो उसी फार्मूले पर डिक्टो उसी फार्मूले पर या फार्मूले को ही पूछा गया तो उसको आप लर्न कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्वेश्चन से प्रूव दैट
2 cos 45 into cos 15 is equals to √3 plus 1 upon 2। अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को वैसे तो हम पिछले भी मेथड से कर सकते थे। cos 45 की वैल्यू हमको पता होती है, cos 15 की वैल्यू को हम जो है वो पिछले 45 माइनस 30 या 60 माइनस 45 की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे भी इजी है अगर हम इसको सॉल्व कर दें प्रोडक्ट, क्योंकि आप अगर देखें बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लिकेशन, और दोनों कॉस के टर्म यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 2 ऑलरेडी है, तो फार्मूला हमारा 2 कॉस ए कॉस बी लगेगा। तो अभी हमने पीछे बताया था आपको क्या, 2 cos a cos b क्या होता है, 2 cos a cos b is equals to cos a plus b plus cos a minus b। okay, now here we take left hand side and apply this formula। तो a is here 45, b is here 15। तो now if you apply this formula, तो cos a plus b means 45 plus 15 and cos a minus b means 45 minus 15। clear? 45 plus 15, you know that 60, and this is a 30, cos 60, you know what is the value of cos 60, cos 60 is 1 by 2 and cos 30 is a √3 by 2, 2 is LCM, if we take LCM, we get a result √3 plus 1 by 2, and this is the right hand side part of a question। clear? Means it is a proved। okay, easy question, very easy। now similarly we take up question number 4 first part, no? okay, question number 4 first part is says here prove that, what prove that, sin 80 minus cos 70 is equals to cos 50। जैसा कि आप देख रहे हैं हमको ये चीज यहां पर लानी है, मेरी बात समझे। यहां पर अगर हम इसको देखें, ये हमारा जो दिया गया है cos 80 sin 80 माइनस cos 70, और ये हमें प्रूव करना है। तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई बीच में माइनस है, तो हम यहाँ पर c माइनस डी फार्मूले को यूज कर सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं बहुत अच्छे से कि c माइनस डी फार्मूले जो मैंने पीछे अभी बताए हैं आपको, वो फार्मूले केवल अप्लीकेबल होते हैं सेम टर्म्स के बीच, मतलब दोनों अगर साइन में हो या दोनों कॉस में हो तभी अप्लीकेबल होते हैं, नहीं तो अप्लीकेबल नहीं होते हैं। मैं फिर एक बार दिखा देता हूं, जरा आप देखिए गौर से कि यहां पर साइन सी प्लस साइन डी में दोनों साइन में थे, यहां पर भी दोनों साइन में थे, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यहां दोनों कॉस में है और यहां दोनों कॉस में है, और इनके ये फार्मूले आपको आगे दिए हैं। करेक्ट? तो यहां पर एक बात आप समझ गए होंगे कि ये जो फार्मूले हमारे पास हैं वो c माइनस डी या c प्लस डी के, वो दोनों सेम टर्म्स के बीच लगते हैं। तो अगर आप देखें कि हमने लेफ्ट हैंड साइड अगर लिया है साइन 80 माइनस कॉस 70, तो यहां पर अगर और कोई रास्ता दिख नहीं रहा हमको प्रूव करने का, c माइनस डी लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम दोनों टर्म्स को एक ही में कन्वर्ट कर लें, मतलब या तो इस साइन को हम कॉस में कर लें या इस कॉस को साइन में कर लें। तब सवाल उठता है कि साइन को कॉस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो भाई ये कुछ फार्मूले पीछे मैंने बताए थे आपको, वो ध्यान होंगे। तो एक फार्मूला जैसा कि मैं आपको बता दूं वो ये होता है, क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस थीटा। होता ही नहीं होता है, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो भाई अगर हम इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको कुछ ऐसा लिखिए। तो ऐसे में मैंने क्या किया, 80 को लिख दिया 90 माइनस 10। अब ये साइन 90 माइनस थीटा है और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। मीन्स ये आपका कॉस 10 डिग्री आ जाएगा और बगल में कॉस 70 था ही। अब ये हमारा देखेंगे आप दोनों किस में आ गए, कॉस में आ गए। तो अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। इस पर हम लोग डिस्कस किया था। तो माइनस होने के कारण ये दोनों साइन में ये फॉर्मूले यहाँ अप्लाई हो जाएंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी अब मैंने अप्लाई कर दिया, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी, ये है डी माइनस सी, 70 माइनस 10 बाई 2, ये आपका सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर अगर देखें 70 10 80 80 बाई 2 40, यहाँ में 40 कर दिया। 70 माइनस 10 ये
60 बाई 2 30, ये 30 आ जाता है आपके पास। और अब अगर आप देखें cos 30 की वैल्यू तो हमको पता है 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें ये sin 40 मिल जाता है। लेकिन फिर दिक्कत है कि हम राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना था, क्वेश्चन था कि cos 50 लाना है और ये किस में आ गया, sin 40 में। अब sin 40 को हमें फिर cos में बदलना है, तो भाई इसी की तो हेल्प ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो अब ये 40 को कैसे लिखे, 90 माइनस समथिंग, तो क्या किया मैंने, 40 को लिख दिया 90 माइनस 50, ये 40 के इक्वल होता ही होता है। तो ये हमारा देखेंगे आप sin 90 माइनस 50 जो cos 50 हो जाता, यही हमारा राइट हैंड साइड था जो प्रूव हो जाता। क्लियर। तो ओके, नाउ we are going to discuss another question. That question is question number 5, first part. Okay. अगर आप देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ये भी कहता है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट, sin 5x plus sin 3x होल अपॉन cos 5x plus cos 3x इज इक्वल्स टू tan 4x। तो बहुत सिंपल लग रहा है क्योंकि ऊपर sin c प्लस sin d, नीचे cos c प्लस cos d, देखो दोनों sin में है दोनों cos में है, तो यहाँ पर c प्लस d का फार्मूला अप्लीकेबल होगा। ठीक है ना। तो हमने ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड, जैसा कि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर हमने सीधे फॉर्मूला sin c प्लस sin d और नीचे क्या cos c प्लस cos d। भाई देखो फार्मूले तो आपको याद रखने हैं, मैं बार बार लिखूंगा नहीं। तो मैंने पीछे बताया था कि sin c प्लस sin d क्या होता है, प्लस है तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, देखो मैंने लगा दिया। तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये आ गया। और नीचे क्या था, cos c प्लस cos d। अब भाई cos c प्लस cos d फॉर्मूला क्या था, अभी मैंने लिखा भी था पिछले क्वेश्चन में और आपको दिया भी था। तो cos c प्लस cos d होता 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो वही यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया, देखेंगे आप। तो cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक, ये चीज अप्लाई कर दी गई है। और जैसे अप्लाई किया तो आप देखेंगे फटाफट कि भाई ये हमारा क्या है, ये जो ऊपर का पूरा इनका ये खानदान है cos का, और ये भी ये दोनों सेम है, तो ये पूरा का पूरा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। दिस 2 is cancelled by this 2 and we get here what, sin 5 plus 3 8 by 2 4x। तो यहाँ पर 8 by 2 हम देखेंगे क्या मिल गया, ये sin 4x मिल गया। और नीचे क्या बचा, ये भी तो बचा था क्या, cos 5 plus 3 8 by 2, ये भी cos 4x आ गया। तो भाई देखो मैंने यहाँ लिखा, उसके बाद ये कर दिया। अब sin अपॉन cos क्या होता है, भाई थीटा दोनों में सेम है, 4x sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो ये हमारा tan 4x हो जाता है। ये राइट हैंड साइड आपका आ जाता है। तो आपको देखकर या समझकर ये आ गया होगा समझ में कि सीधे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी। और जो क्वेश्चन हम लोग छोड़ रहे हैं, अगर आप देखेंगे वो क्वेश्चन सभी जो हैं एकदम इन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड हैं, तो आप लोग घबराएंगे नहीं और ट्राई करेंगे तो तुरंत आ जाएंगे, और ना आने पर हम फिर बताएंगे आप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन इज सेइंग प्रूव दैट, व्हाट प्रूव दैट, sec pi by 4 plus x into sec pi by 4 minus x is equals to क्या, 2 sec 2x। तो भाई मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत अच्छे से आप देख रहे होंगे कि ये sec x इंटू में फिर sec है, तो ये sec थीटा sec a इंटू sec b जैसा है। लेकिन फार्मूला जो होता है, अगर हम देखें यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के जो फार्मूले मैंने आपको बताए थे वो सारे फार्मूले साइन और कॉस के बीच होते हैं। सेक, कोसेक, कॉट और टैन की कोई जगह उनमें नहीं होती है। तो हमको अगर यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करना है तो इन दोनों सेक को साइन या कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो भाई देखो यहाँ भी सेक 1 अपॉन कॉस, तो मैंने इसको दोनों को कॉस में कन्वर्ट कर लिया। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस, ये भी 1 अपॉन कॉस, तो मैंने एक साथ दोनों को लिख दिया, कोई गलती तो नहीं की। अच्छा, अब
अब यहाँ पर फार्मूला तो होता था क्या 2 cos A cos B का, मतलब यहाँ 2 का होना जरूरी है, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, चलो वो भी कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अब 2 cos ये पूरा A हो गया इंटू cos B। अब 2 cos A cos B क्या होता है, अब भैया तो याद रखना पड़ेगा, फिर पीछे आप वीडियो देखेंगे, नहीं तो आप मैंने आपसे कहा था नोट कर लीजिए, 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B, ठीक है ना। तो यहां पर वही चीज है, 2 cos A कितना था ये, और B कितना ये, देखो A प्लस B हुआ ना, और प्लस cos A माइनस B, A माइनस B, और जब ये माइनस लिया है तो ये माइनस जब अंदर जाएगा यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे हैं मैंने ना, ये यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, ऐसा आ गया है। अब अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये जो x है इस x से कैंसिल, और इधर वाले में पाई बाई 4, दिस पाई बाई 4 से कैंसिल, तो भाई ये कट गया, तो क्या बच गया, पाई बाई 4 और पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 4 एलसीएम 2 पाई बाई 4 पाई बाई 2। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर 2 पाई बाई 4 आ गया है, और यहाँ पर तो आप पाई बाई 4 कैंसिल हो गए, तो एक्स इतना आ गया, 2x आ गया। अच्छा, अब अगर आप देखें यहाँ पर ये 2 ही है, cos पाई बाई 2 आ गया इससे, और ये cos पाई बाई 2 का मतलब cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2/0 प्लस cos 2x, और ये cos 2x को फिर आप न्यूमरेटर में ले गए तो cos कन्वर्ट हो जाएगा sec में, sec 2x, यही तो हमारा राइट हैंड साइड था, देखें अगर आप, यही तो प्रूव करना था, तो हमारा राइट हैंड साइड आ गया 2 sec 2x प्रूव हो जाता है, क्लियर। तो भाई ये जो मैंने क्वेश्चन बताया ये 7th पार्ट था आपका इसका। तो चलिए एक ऐसा करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, या चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, डाउनलोड करने में आपको दिक्कत होगी। ओके।